मार्केट में बिजनेस न्यूमरोलॉजी की डिमांड अभी तक लोगों के पास है। 5% ही लोग इसको कैटर कर पा रहे हैं। एस आई सेड कि लाइक इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मोर देन 90% कंपनीज विदाउट न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन दे डोंट एंटर इनटू द मार्केट, वेदर इट इज द नेम ऑफ द कंपनी या फिर लोगो डिजाइन की बात करें, या फिर समटाइम्स यू हैव सीन द प्रोडक्ट प्राइसेस लाइक 299, 399, 499, दीज वर केप्ट पर्पसली। लाइक अगर आप देखेंगे कि पहले हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते थे दैट वाज लाइक इन राउंड फिगर 50 रुपए, 100 रुपीज, 400, 500 रुपीज, पर पर्पसली 99 को इसलिए किया गया बिकॉज 9 इज एनर्जेटिक नंबर एंड वंस यू लुक अपॉन दीज नंबर्स ना, आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा क्रिएट होती है कि नहीं मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। सो ये एक लॉजिक था कि जहां पर नंबर्स के गेम को इस तरह से यूज किया जाता है। I'm Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pep Tech Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Mr. Rajiv Lala Ramani. He is a financial advisor by profession who has completed his masters in finance from Pune University. Numbers has always fascinated him, which created his interest in the science of numbers, and today he is a well-known numerologist practicing in Indore. His core success is in giving perfect balanced names to people for bringing out the best in them and thus making them more fortunate. A visionary by nature and a student with the thought, he firmly believes that we have the power to attain anything in the world and get whatever we wish to, and our numeric planetary positions act as a catalyst in achieving these. Slight bit of correction and remedies could help us better prepared to handle any adverse situations and lead to successful life. Apart from individual numerology, he offers specialized services for the section of company names, logos, and corporate houses to help them grow and succeed. Clients receive valuable insights and expert advice from him and implement those advices into their professional and personal lives. He suggests very simple, practical, and effective tips as remedies for the treatment of their various problems. He focuses on stress is on numeral remedies which any person can follow with ease. Spiritual enlightenment makes his tips more powerful. So today he will be discussing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome Rajiv ji. The platform is open and now over to you. So much Jiten ji, and thank you once again for inviting me on the show and allowing me to share my journey related to my personal life as well as professional life. So thank you once again Jiten ji. And pleasure to have you here. So first thing I'd like to know from you is how did your past life has affected the person who you wanted to be in your life and what you are? Jiten ji, in every person's life I mean there are two roles. First, what he wanted to become, and I mean more than 50% of the cases you will see that the people what they wanted to become, they never achieve what they thought in their younger years. Because ऐसा होता है ना कि एक बार आपकी एज बढ़ती जाती है, विद योर एज सो मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स चेंजेस और आपका फिर वहां पर विजन भी चेंज हो जाता है. सो दैट सेम हैपेंड विद मी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन, सीरियसली स्पीकिंग, एंड बिकॉज आई एम बैकग्राउंड लाइक माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन. बट देन यू सी कि लाइक जब जर्नी बिगिन होती है तो वहां पर बिजनेस का सारा सिनेरियो वहां पर हट गया. इनफैक्ट आई विल टेल यू, आई वाज वेरी much interested towards stock market because stock market is all about numbers and from beginning itself numbers always fascinated me. तो मुझे ये लगता था कि stock market is the place where I should go and really I mean I worked on it also. What has happened in earlier days कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ने ऑलमोस्ट यही कोशिश की थी कि मैं बिजनेस में आऊं और उसके साथ साथ मेरा अकाउंटेंसी में होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. सो मेनी अ टाइम्स ही पैम्पर्ड मी, ही फोर्स्ड मी कि तुम्हें सीए की स्टडीज करनी है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जिस दिन मैंने सीए का स्टडीज वगैरह चालू किया मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता था बिकॉज वही अकाउंटेंसी, वही सारा नंबर्स, वही सारा डेबिट क्रेडिट एंड ऑल. मैंने कहा बिजनेस अगर करना है तो ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट जरूरी होता है किसी भी बिजनेस या मैथमेटिक्स को लेकर. एंड व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द सीए, मतलब मेरा कोई अंदर से पैशन नहीं था कि मुझे सीए करना है. और जब मैंने सीए वगैरह का एग्जाम को ज्वाइन किया, मैंने गया वहां पर तो विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्योंकि वो जील ही नहीं था. फर्स्ट केस पे मैं पूरी तरह से ड्रॉप आउट हुआ और उसके बाद मैंने पापा को बोला लाइक आई सेड टू माय फादर कि आई डोंट वांट टू बी ए सीए, और मेरा कुछ ड्रीम, कुछ लाइन टोटली यहाँ पर अलग है. इसके बाद जब मैंने पर्टिकुलरली
मैंने अपनी फर्दर स्टडीज कंप्लीट की एंड माय पैशन वाज ऑलवेज टू बी इन द स्टॉक मार्केट। फिर मैंने स्टॉक मार्केट की कंपनी को ज्वाइन किया एंड आई ऑलवेज लाइक यूज्ड टू कनेक्ट विद द नंबर्स, और नंबर्स के साथ में ऐसा था कि मैंने 15 साल फाइनेंशियल मार्केट के जॉब को ही वहां पर पूरा किया। लेकिन होता क्या है कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है एंड दैट सेम हैपेंड विद मी आल्सो। सो लाइक फाइनेंशियल इश्यूज, सम हेल्थ इश्यूज वर देयर एंड दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड विद द एस्ट्रोलॉजर। और किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने के बाद आई अप्रोच्ड वास्तु पर्सन आल्सो, और उसके बाद फिर मैंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को भी अप्रोच किया। सो व्हेन द टाइम इज डिफिकल्ट, व्हेन यू आर इनटू प्रॉब्लम्स, यू ट्राई टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज, और यही सारे लोग होते हैं जो आपको डिवाइन या स्पिरिचुअल एनर्जी से आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। सो मेरी लाइफ में भी यही था कि जब मैं किसी न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट हुआ तो वहां पर मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया। बिकॉज यू नो लाइक बचपन से हम सब ने, बचपन से जब हमारे नामकरण होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, सो वी कनेक्ट विद द ज्योतिष, क्योंकि वही आपको बताता है कि आपका नाम किस अल्फाबेट से होना चाहिए और आपका शादी कैसा होना चाहिए। शादी के लिए आप पत्री मैच करते हो, लाइक यू मैच द हॉरोस्कोप एंड सो मेनी इन्वॉल्वमेंट्स आर देयर ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर इन योर लाइफ। लेकिन जब मैं न्यूमरोलॉजी से मिला ना, तो मेरा यहाँ पर पूरा तरह से माइंडसेट चेंज हो गया। और फिर यही था कि पैरेलली फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ मैंने न्यूमरोलॉजी की स्टडी भी करना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल अगर देखोगे कि बचपन में ख्वाहिश कुछ और थी, करना कुछ और था, एंड फाइनली आई लैंडेड अप टू समथिंग एल्स। Right, it happens. That happened with most people, like me also. So, if I talk about things you are passionate about in your life, one, you clearly mentioned that these are numbers. Apart from that, anything else you are passionate in your life? Numbers, always numbers. Like सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक, I am passionate about numbers, and I'll tell you something about numbers also. See, as I told you कि parallelly I was working in both the sections. I was into financial market also. I was into this numerology also. और अब तो ऐसा हो गया कि like I'm 100% into numerology only. So passionate का अगर मैं कहीं से एक डेफिनेशन दूं तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी यानी डिवाइन साइंस, एक स्पिरिचुअल साइंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एंड आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद दीस थिंग्स आल्सो, बिकॉज क्या होता है कि जब आप किसी की लाइफ में एंटर करते हो एंड यू कम टू नो सो मेनी थिंग अबाउट द नंबर्स, अगर मुझे आपके लाइफ पैटर्न के बारे में नंबर्स के थ्रू और आपके नाम के थ्रू से पता पड़ना शुरू हो जाता है, सो आई ट्राई टू जज कैसे, लाइक व्हेन यू गो आउट इन अ पार्टी, व्हेन आर यू लाइक इन अ सोशल गैदरिंग, व्हाट हैपेंस कि सम पर्सन प्लीजेस यू, कि आपको लगता है इसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, आपको इसके साथ में दोस्ती करनी चाहिए। अब क्या होता है, आप उसके साथ में हैंडशेक करने जाओगे, मिलने जाओगे, तो आपको सिर्फ उसका नाम पता होता है, आप उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते हो। लेकिन यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की साइंस इतनी गहरी होती है कि आप किसी का नाम पूछ के भी ना आप सामने वाले के व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। सो नाम हुआ या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ या किसी पर्सन के बारे में जाना, तो ये हमेशा से एक फैसिनेटेड रहा है। एंड आई ऑलमोस्ट लाइक जो मेरी जर्नी रही है इन्हीं सारी चीजों से जुड़ी हुई है, और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस पर्टिकुलर साइंस में और डीपली एंटर करूँ। Great. So apart from numerology, anything else you are doing as a passion? Nothing as of now. I am very lazy kind of person, so I try to sleep more and more sometimes. And इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुझे टेनिस खेलने का बड़ा शौक है. I often watch some kind of romantic movies या फिर some kind of like historical movies also. तो इस तरह की कुछ passionate है. And Sunday is like sleeping and somewhat like relaxing, क्योंकि 6 days अगर मैं पूरी तरह से वर्क करता हूँ तो एक दिन लगता है कि फैमिली के साथ स्पेंड करना और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना. Correct, chill out करना भी जरूरी है. So that's Very great. true. So if I talk about your work and experiences, like you said that you started your career as a corporate employee. So what all were there as part of your work and work environment there, and how you got into numerology? ऐसा टोल्ड यू कि लाइक हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई इशू एंड प्रॉब्लम आता है और फिर हम किसी अकल प्रैक्टिशनर को वहां पर अप्रोच करते हैं. तो सेम आई डिड, लाइक आई अप्रोच्ड अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट माय नंबर्स, लुकिंग एट माय डेट ऑफ बर्थ एंड माय नेम, ही प्रेडिक्टेड मेनी थिंग्स एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा भी कुछ होता है कि सिर्फ किसी के नाम को देखकर यू कैन प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग्स. सो समवेयर और द अनदर आई गॉट अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर साइंस और फिर मैंने स्टडीज करना शुरू किया. एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ स्पैन ऑफ से फ्यू मंथ्स मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने डेप्थ में जाकर इतना नई चीजों को एवेल्यूट किया, नई चीजों के साथ में लिंक मिला. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग देयर आर सर्टेन मेनी थिंग्स कि जो ये पर्टिकुलर चीजें आज मास पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. सो कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप देखोगे तो न्यूमरोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम आई तो न्यूमरोलॉजी के साथ में कनेक्शन हुआ और कनेक्शन इतना ज्यादा डीप होता गया कि आज के डेट में मेरा ब्रेड एंड बटर ही न्यूमरोलॉजी है. Great. And how was your corporate career? That was fantastic. Basically, I used to head a research desk और research desk में मेरे अंडर में there was like almost 20 to 25 people. So what we used to do कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसे डीपली स्टडी करना पड़ता था और उसके बाद में उस कंपनी का परफॉर्मेंस लाइक वी नीड टू इवैल्यूएट कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में इसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च वी यूज्ड टू सजेस्ट
the name of the stocks to the fund managers. As you know, like the fund managers are there in the corporate treasury, also mutual fund, insurance, banking, सारे division में there is a corpus like जो treasury department के साथ में होता था. तो we used to interact with the fund managers and many a times I had to visit Bangalore also, Delhi also, और fund managers के साथ में मिलकर हमें ये सारे suggestion देने पड़ते हैं. And it's a kind of a responsibility वाला बहुत बड़ा job होता है because on your say research work ना they used to invest crores and crores of rupees. So ये बहुत ज्यादा एक challenging काम रहता था. तो मेरा ये उस टाइम पर जॉब था एंड I'll tell you like almost in a span of 15 years I worked for 3 different companies और सारे के सारे तीनों कंपनी में मेरा बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा था because empanelling a bank with your company is a big challenge and Right. within a year's time I almost empaneled approx 20 to 24 banks mutual funds with my broking house. So this was like one of the biggest achievement which I did in corporate world also. So you were responsible for the research part as well as the sales part as also. Right, completely. Great. So wonderful career you have there. Then you moved on to numerology into a different science altogether. So really an exciting journey for you. So if I talk about the vision, mission and goal in life for next 5 to 10 years from now, what is that? See, as you said, it was an exciting journey, no doubt about it, but it was challenging also because you know, like when your parents spend so many lakh of rupees on your education, and ultimately you will land up to some other, you know, like some other department or some other area, they feel something a bit bad about it. So same happened with me also. Like when they have spent so much because I have done MBA Finance and Marketing. See, he was not wrong on his part, but again कि like अगर MBA Finance में किया and you are working with a corporate company with a renowned firms in Mumbai, तो फिर इन सब में आने की क्या जरूरत थी और क्यों आए हो यहाँ पर. But then फिर उन्होंने मेरा पैशन देखा, मेरा इंटरेस्ट देखा और धीरे धीरे जब मेरा इसमें उन्होंने प्रोग्रेस देखी, उन्होंने ग्रोथ मेरी देखी, तो दे वर मोर देन हैप्पी. उनका एक ही बोलना था कि चाहे आप फाइनेंशियल मार्केट में रहो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में हो, जहां पर भी जिस डिपार्टमेंट में भी होगे, अपना एक्सलेंस मतलब वहां पर अपना बेस्ट देना वहां पर. सो उसके बाद तो धीरे धीरे लाइक फादर का भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, मदर ने भी सपोर्ट किया, वाइफ ने भी सपोर्ट किया. सो ग्रेजुअली अब मेरा कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया. सो आज की डेट में अगर मेरा विजन अगर होगा तो मेरा यही होता है कि सी न्यूमरोलॉजी की अवेयरनेस लाइक इन इंडिया इट इज वेरी लेस बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में न्यूमरोलॉजी इज हार्ड कोर फॉर एनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, फॉर एनी इंडिविजुअल ऑल्सो. बिकॉज इफ यू सी द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मोर देन 80 to 90% कंपनीज जो होती हैं बिना न्यूमरोलॉजी के दे डू नॉट एंटर इनटू द मार्केट. इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है एंड बीइंग अ सिंगल होल पर्सन आई कैन नॉट कैटर द लार्ज स्केल ऑफ पीपल. सो माय विजन इज कि मैं एक्चुअली में ऑनलाइन सेशंस क्लासेस भी लेता हूँ. आई एम डूइंग मेंटरशिप आल्सो इन न्यूमरोलॉजी. सो मेरा ये रहता है कि इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सी जब मेक इन इंडिया की बात मोदी जी ने शुरू की थी, सो वी नो कि लाइक इंडिया में जितने भी कंपनीज होती हैं आज की डेट में हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी या दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी इज गोइंग डाउन बिकॉज वी आर नाउ कैपेबल इनफ टू कैटर ऑन अ लार्जर स्केल. फिर मुझे यही लगता है कि न्यूमरोलॉजी के लिए भी मोस्ट ऑफ आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे डू टेक सजेशन फ्रॉम न्यूमरोलॉजिस्ट विच आर बेस्ड इन सिंगापुर, मॉरिशस, दुबई या फिर यूएस वगैरह. सो व्हाई टू टेक सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड? ये सर्विसेज हम भी यहाँ पर दे सकते हैं. एंड मुंबई में मैंने यही देखा था कि व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर द फाइनेंशियल मार्केट कंपनी, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, आपने भी देखा होगा डे टू डे लाइफ में, कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, व्हेन यू विजिट सम डॉक्टर, उनके कई बार आप कैफेस वगैरह में जाते हो, यू मस्ट हैव सीन कुछ फेंगशुई के वहां पर रेमेडीज होती है लाइक लाफिंग बुद्धा जो होता है, कहीं पर विंड चाइम्स आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि प्लेट के ऊपर कछुआ एंड देन वाटर चेंज किया जाता है ऑन द डेली बेसिस. सो ये कुछ फेंगशुई की रेमेडीज है. हमारे पास अपनी ऑथेंटिक बहुत पावरफुल रेमेडीज है. सी इंडिया इज ऑरिजिन जहां पर हमने ना ऋषि मुनियों ने बहुत सारी नई नई चीजों, बहुत सारी इस तरह की चीजों को दिया हुआ है. सो व्हाई टू डिपेंड ऑन चाइना? करेक्ट. तो बात ये आती है चाइना की जो चीजें होती है ना हमें जल्दी अट्रैक्ट करती है, वेदर दे आर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. एंड ऑन दैट डे आई थॉट कि अगर न्यूमरोलॉजी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम सर्विसेज दे सकते हैं सो इससे बेस्ट क्या हो सकता है. तो हमारा जो भी इंडिया में मेक इन इंडिया की जो कंपनीज वगैरह होती है उसमें जो लोगो डिजाइन होता है या फिर इसमें जो भी हेल्प वगैरह होती है, एक विजन था कि आने वाले टाइम में हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ, वो हम ये सारी सर्विसेज यहाँ पर देंगे. बट एज यू नो कि अ सिंगल पर्सन कैन नॉट कैटर टू अ लार्जर स्केल. तो मेरा एक हमेशा से विजन था कि थ्रू मेंटरशिप आई विल ट्रेन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ताकि वो इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक सर्विसेज दे सके. और हमेशा से यही शुरू से विजन रहा और इसलिए फिर मैंने मेंटरशिप चालू की. सो जो मेरा मिशन है वो मेरे विजन के ऊपर ही है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है. एंड माय गोल इज अल्टीमेटली कि इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री वहां पर बनाना जहां पर हम ये सारी जो चीजें होती हैं, चाहे वेदर इट्स पावरफुल नेम या लोगो डिजाइन या नंबर्स के ऊपर जो भी चीजें होती है, हम इंडिया में खुद ही यहाँ पर देना शुरू करें. Correct. And what we see is feng shui related things, whatever we buy from market,
China have banned these things in their own market. Like they are not allowed to buy these things and keep these things in their home. But Very true. they do mass production and sell it overseas, and we buy them, unfortunately. But we have more powerful remedies, as you just mentioned, which are like well researched, scientific, authentic, and they are really powerful as compared to any remedies available in the world. See, in fact, you will see ना most of the countries they are on the path of astrology and numerology, और इसका जो basis, इसका जो root cause है, that has been found in India only. क्योंकि ऋषि मुनियों से like most of the people have learned so many things about, they have learned about the Veda, the Shastras, and so many things they have learned. और फिर अपनी country में जाकर ना उसको एक थोड़ा सा अच्छा सा finishing देके या थोड़ा सा गुमान में present करना शुरू कर दिया, modify कर दिया. modify करके daily basis पे I keep on like seeing things worldwide ना, बाहर की चीजें भी आती है, तो मैं देखता हूँ कि योगा we follow very less in India as compared to like other countries, और वहाँ पे वो लोग योगा को अलग अलग मेडिटेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से योगा को यूज करते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो हम मेडिटेशन के लिए म्यूजिक्स वगैरह सुनते आ रहे हैं, मंत्रास, तंत्रास, दे फॉलो देम ऑल्सो, दे यूज देम ऑल्सो इन अ डिफरेंट नोट, थोड़ा सा चेंज करके अलग तरीके से. बट वो चीजें तो वहीं से, एग्जिस्टेंस तो वहीं से ही है, जो यहाँ से गई है और वहां पे जाके उन्होंने चेंज करके अपने तरीके से यूज कर रहे हैं. नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. एंड इफ यू लुक इनटू दिस सिस्टम कि इंडिया में ये सारी जो चीजें होती है ना, ऐसा सोशल सर्विस के हिसाब से भी की जाती है कि जहां पर योगा मेडिटेशन एक कंपलसरी पार्ट होता है. बिकॉज माय सन इज गोइंग टू स्कूल, और उसके सेशन के स्टार्ट होने से पहले भी 10 to 15 मिनट्स का जो मेडिटेशन पार्ट है, इट्स कंपलसरी. सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि सोशल कॉज एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से इंडिया में किया जाता है, लेकिन इन्हीं चीजों को बाहर ले जाकर इसको सारा कमर्शलाइज भी कर लिया जाता है. करेक्ट. एंड दे मेक ह्यूज मनी ओवरसीज. एक्चुअली सो इफ यू हैव सीन अक्रॉस द Amazon ऑल्सो कि जो दातुन हम बचपन में यूज करते थे टू क्लियर आवर ट्री, अब वो Amazon पर भी बिकने शुरू हो गया है. सो अकेला मंत्र की बात नहीं है, हमारे ऑथेंटिक चीजें जैसे नीम होता है, काली मिर्च होती है, हल्दी होती है, कितना पावरफुल और मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब उसको कन्वर्ट करके दे आर कमर्शलाइजिंग इट टू अनदर कैटेगरी. करेक्ट. सो दैट्स रियली एन इम्पोर्टेंट वन. वी हैव ऑल द थिंग्स इन इंडिया बट वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपर्ली. सो दैट इज वन bad aspect of it. We should spread awareness of all these things so that people are more aware, more conscious about what we have as a विरासत कह सकते हैं ना हम लोग, कि हम लोगों के पास विरासत है, बट हम से बोल सकते हैं बीइंग एन इंडियन, ये बात से बोल सकते हैं. राइट. सो अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स यू हैव लर्नड इन योर लाइफ, व्हाट आर दोस? See, my first important life lesson would be कि हमें ना कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. बिकॉज आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मैंने इस पर्टिकुलर लाइक प्रोफेशनल जर्नी जो मेरी थी, आई स्टार्टेड इन 2003, और इस बीच में ना मैं 2-3 अलग अलग सिटीज में भी गया. लाइक ड्यूरिंग माई फाइनेंशियल मार्केट जर्नी मैं नागपुर में भी ट्रेवल किया था, मैं फिर दिल्ली की तरफ भी गया था. होता क्या है कि व्हेन यू ट्राई टू शिफ्ट योरसेल्फ टू ट्राई टू ट्रांसफर टू सम अदर सिटी ना, तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है राजीव आप आ जाओ यहाँ पर, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करोगे. एंड वहां पर पहुंचने के बाद ना ऐसा हुआ कि आई वाज लेफ्ट ब्लैंक. राजीव हम तुमसे कल बात करते हैं, परसों मिलते हैं. एंड समटाइम्स कि ऐसा होता है कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ रिस्की जॉब, यू नो, लाइक यू कैन नॉट सजेस्ट एनीवन कि लाइक तुम राजीव के पास जाओ, अकाउंट ओपन करो, ही विल गाइड यू वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, वो सारा आपको गाइड कर देगा. तो मैंने अपनी लाइफ जर्नी में एक चीज सीखी कि कभी भी ना किसी के भरोसे पर नहीं करना. ये लाइफ की जो जर्नी होती है अकेले हमने ट्रेवल करनी होती है. आपको किसी का साथ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बट किसी के भरोसे हमने नहीं बैठना होता है. बिकॉज लाइफ में मैंने 2-3 ऐसी मिस्टेक्स की थी कि मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ऊपर ट्रस्ट करके चला गया था, कि एक फेथ होता है कि चलो मैं घर से पहली बार निकल रहा हूँ तो मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए. और जब उन्होंने मुझे अंधकार में छोड़ दिया, तो दैट वाज द बिगेस्ट लाइफ लेसन इन माय लाइफ. बिगेस्ट लाइफ लेसन यही था कि मुझे ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. तो अपने आप को अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से इतना सेल्फ सफिशिएंट बना लीजिए कि लोग आपसे पूछें, कि आपसे बार बार मतलब पूछते जाए कि जर्नी कैसे की. तो मतलब मेरा ये था कि सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट. राइट. हमने किसी के ऊपर नहीं होता है, और हमारा जो पैशन होता है, नो डाउट व्हेन यू फॉलो इट योर ड्रीम्स कम्स ट्रू. करेक्ट. अब दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ना होना सबसे बेस्ट चीज है. आप खुद ही को मतलब इतना एफिशिएंट बनाओ कि आपको जरूरत ना पड़े, पहली चीज. तो बाकी रिलेशनशिप, इमोशंस, वो सब चीजें एक एस्पेक्ट है लाइफ का विच इज मोर इम्पोर्टेंट. बट ऑन द अदर साइड यू शुड थिंक इन अ वे दैट यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग. कनेक्ट रहो, साथ में रहो, एक दूसरे की हेल्प करते रहो और लेते रहो, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. एंड सेकेंडली पैशन लाइफ में बहुत जरूरी है. आप जो मर्जी करो, पैशन तो जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं
बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आज की डेट में मैं किसी के ऊपर डिपेंड अगर होता है ना, तो बोलती कि राजीव को देखो आज मेरे कारण से आगे बढ़ा, बट आई एम मोर देन हैप्पी कि मैं खुद से आगे अपना चलना शुरू किया, एंड समवेयर और द अदर साइड माय फैमिली वाज देयर टू सपोर्ट मी क्रेडिट आउट। लेने तो लोग सब आ जाते हैं, मतलब व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग लोग पीछे हटते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट ना, एवरीबॉडी कम्स वेरी ट्रू, राइट। वेरी ट्रू, वेरी। So you were talking about business numerology. I want to understand more onto it. What exactly business numerology is and how it work for businesses. See, as I told you कि आज की डेट में if I compare with the data ना, like 95% मार्केट में बिजनेस न्यूमरोलॉजी की डिमांड अभी तक लोगों के पास है, 5% ही लोग इसको कैटर कर पा रहे हैं। As I said कि like in Fortune 500 companies, more than 90% companies without numerology consultation they don't enter into the market, whether it is the name of the company या फिर लोगो डिजाइन की बात करें, या फिर sometimes you have seen the product prices like $299, $399, $499. These were kept purposely. Like अगर आप देखेंगे कि पहले हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइसेस होते थे that was like in round figure, 50 रुपए, 100 रुपीज, 400, 500 रुपीज, पर पर्पसली 99 को इसलिए किया गया बिकॉज 9 इज एनर्जेटिक नंबर, एंड वंस यू लुक अपॉन दीज नंबर्स ना, आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा क्रिएट होती है कि नहीं मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। सो ये एक लॉजिक था कि जहां पर नंबर्स के गेम को इस तरह से यूज किया जाता है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि लोगो डिजाइन जैसे होती है, सो मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में अगर आप देखेंगे कि कोई कंपनी एक सर्टेन एज के बाद डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, और फिर कंपनी सोचती है कि शायद अब हमने यहाँ पर नाम चेंज करना चाहिए, कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाहिए, बट एज पर इंटरनेशनल लॉस मेनी ऑफ द कंपनीज, these companies are not allowed to change their name. Like I always used to share the example of Airtel. Reliance Jio जब मार्केट में एंटर हुआ था in 2017, they come up with the unique pricing model, और उनके प्राइसिंग इतने ज्यादा सस्ते थे कि जहां पर 1 GB हमें 250 रुपीज में परचेज करना पड़ता था, नाउ दे हैव गिवन इट फॉर कंप्लीटली फ्री। अब धीरे धीरे आप अगर देखेंगे तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर में लाइक वोडाफोन एंड आइडिया दे मर्ज टुगेदर इन ऑर्डर टू कॉम्पीट जियो, बट वो कॉम्पीट नहीं कर पाए, और कुछ टाइम के बाद एयरटेल को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन होने के कारण से उनको भी अपना प्राइसिंग मॉडल यहाँ पर कम करना पड़ा। छोटे मोटे प्लेयर्स तो सारे के सारे बाहर हो चुके थे। अब ऐसे केस में कोई कॉर्पोरेट कंपनी आपके पास अप्रोच करती है तो आप कैसे हेल्प करोगे? सो एयरटेल का जो नाम का जो टोटल आता है दैट कम्स ऑन अ नॉट ऑन अ गुड टोटल। सो इफ आई से कि एयरटेल के अंदर मुझे डबल आर डबल टी डबल एल करना, कंपनी वॉन्ट अलाउ यू, बिकॉज इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता इन सारी चीजों को लेकर। तो यहाँ पर हमने कंपनी के लोगो डिजाइन में चेंज करना होता है, बिकॉज एक कंपनी के लिए ना उसका नाम और उसका लोगो डिजाइनिंग ये दो फेसेस ऑफ द कंपनी होते हैं। तो जहां पर ऑल्ट्रेशन नेम के अंदर नहीं आते हैं वहां पर हमने लोगो डिजाइन में चेंज करना होता है। तो सिंस आपने अगर एयरटेल को देखा होगा तो कुछ 5-6 साल पहले उन्होंने 4 साल पहले उन्होंने भी अपने लोगो डिजाइन में चेंज किया जस्ट इन ऑर्डर टू कम्पीट विद जियो। इसी तरह से अगर आपने कई बार एड्स देखे होंगे, विमल पान मसाला का आपने एड देखा होगा। विमल पान मसाला में पहले अजय देवगन एंड शाहरुख खान आते थे, और आपने उनकी स्टाइल देखी होगी विमल पान मसाला में, वो इस तरह से कुछ ग्रीट करते थे। नॉर्मल ग्रीट करने का क्या तरीका होता है? यूं किया जाता है, ये कोई इंडिकेशन नहीं है। अब ये विक्ट्री का वी बताते हैं, वी फॉर विमल के लिए इंडिकेशन देता है, लेकिन उसके बाद किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के सजेशन पर अक्षय कुमार को वहां पर लिया गया। सो देयर वाज अ साइंटिफिक थ्योरी कि अक्षय कुमार को वहां पर क्यों लिया गया और 3 बंदे ही क्यों चाहिए थे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पेप्सी में स्वैग होता है, ये एक माइंडसेट क्रिएट किया गया, तो स्वैग के केस में ये पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज किया गया। सो आप अगर देखेंगे कि जब व्हाट्सएप आप और हम दिन भर में 30 to 40 टाइम्स ओपन करते हैं, उससे चैट करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट हिडन एनर्जीज बिहाइंड इट। अगर आप देखेंगे खासकर ध्यान से ना, तो व्हाट्सएप के अंदर भी आपको डिफरेंट वाटरमार्क की इमेजेस दिखाई देंगी। सो दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ एनर्जी सिंबल्स जो रियल टाइम में बहुत पावरफुल से माने जाते हैं। सो कॉर्पोरेट जगत में आने का मेन ये भी था कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज बाहर से लेते हैं। अगर इसका मार्केट हम यहाँ पर बना दें, इनको सर्विसेज अगर हम यहाँ पर दें, तो एक बहुत बड़े मार्केट को हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड व्हाई आई एंटर्ड इनटू बिजनेस न्यूमरोलॉजी आल्सो, एंड देयर आर वेरी फ्यू न्यूमरोलॉजिस्ट्स इन इंडिया जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करते हैं। सो बिजनेस न्यूमरोलॉजी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार बहुत सारी फैक्ट्रीज शट डाउन हो जाती है। देयर आर मेनी कॉर्पोरेट हाउसेस, देयर आर मेनी शोरूम्स। मैं कॉर्पोरेट हाउसेस की बात भी ना करूं, अगर किसी के किराने की शॉप है, किसी की मेडिकल शॉप है, कोई दूध वाला है, हम उसके लिए भी न्यूमरोलॉजी का इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं कभी भी मार्केट में जाता हूं ना, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कि 8 अगर मोबाइल शॉप्स है या फिर लाइन से कंटिन्यूस रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो फिर 1 या 2 जगह सबसे ज्यादा क्राउड क्यों आता है, 1 जगह या 2 जगह पर भीड़ क्यों लगी होती है? सो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एनर्जीज वहां पर समझ में आती है कि या तो पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज किया जाता है, या फिर इनका पावरफुल नाम है, या फिर पावरफुल लोगो है। सो जब इनकी डीप में स्टडी की तो बहुत सारे फैसिनेटिंग फैक्ट्स सामने आए, और धीरे धीरे फिर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में एंटर कर गया। तो जो रिसर्च वाला माइंडसेट था पहले का, दैट इज स्टिल वर्किंग हियर। तो यू कीप ऑन रिसर्चिंग ऑन हाउ
things are moving in business in terms of logo, in terms of numbers? वो तो अब ऐसा हो गया कि सुबह उठने से रात को सोने तक का ना सारा न्यूमरोलॉजी दिखाई देता है. इवन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि मेरा जो बेटा है, व्हेन आई टेक ऑनलाइन सेशंस आल्सो ना, तो मेरा बेटा भी सारा कुछ सुन रहा होता है. एंड वीकेंड्स पर जब हम कहीं मॉल पर जाते हैं या फिर कभी हम बाहर मार्केट में जाते हैं ना, तो बताता है कि पापा वो लोगो देखिए, आप जो स्टूडेंट्स को बताते हो वो लोगो डिजाइन के अंदर कितनी पावर है और इसलिए सबसे ज्यादा रश है. तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स भी उसमें अटैच हो ही जाते हैं. सो ये बात फैक्ट है कि सुबह से लेकर शाम तक सारा का सारा नंबर्स का ही खेल दिखता है. और फिर ये भी होता है कि पर्सनल केस स्टडी, सी जर्नी नेवर एंड्स. आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में हो, आप अगर इंजीनियर कर रहे हो, आप डॉक्टरी कर रहे हो, तो उनके भी कुछ ना कुछ अपडेशन चलते रहते हैं. सेम इज विद न्यूमरोलॉजी ऑल्सो. तो हमेशा से इस टाइप के अपडेशन आपको मिलते रहते हैं. और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये अपडेशन डे टू डे लाइफ में आगे चल करके आपको फायदा भी बहुत ज्यादा देते हैं. सो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी नई चीजें अगर आती हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से कैटर करता रहता हूँ. करेक्ट, दैट रियली हेल्प्स. तो अगर हम बात करें जैसे बिजनेस न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो उसी को लेके अगर हम बात करें कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी बिजनेस में काम करती है जब हम नेम डिजाइन करते हैं या लोगो डिजाइन करते हैं, और कैसे वो बेनिफिशियल होती है, कैसे हेल्पफुल होती है, मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देयर आर पर्टिकुलर पावरफुल सिंबल्स जो होते हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है. वो बाय नेचर ही बहुत पावरफुल होते हैं. जैसे कई जगह पर ऐसा होता है कि हम पूजा करने से पहले, हवन करने से पहले गणपति जी को विराजमान करते हैं, और साथ में अगर देखेंगे कि हम दिवाली के टाइम पर या कभी भी हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का साइन बनाते हैं. नाउ स्वास्तिक का साइन इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल सिंबल. उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है. वो जहां पर भी लगाएंगे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी. लोगो डिजाइनिंग के अंदर भी कुछ इस तरह के फैक्ट्स होते हैं कि जब आप लोगो डिजाइन के बारे में, कंपनीज के बारे में डीपली पढ़ते हो और उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जानते हो, तो हम कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज यानी पर्टिकुलर सिंबल्स वहां पर देते हैं जहां उसके लिए वो सारी चीजें काम करनी शुरू कर जाती हैं. मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड कि कोई शोरूम आपके एरिया में शोरूम नहीं चल पा रहा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया, बट अब उनके पास फुटफॉल नहीं आ पा रहा है. सो वी मेक सर्टेन एनर्जी सिंबल्स और उनको रिकमेंड करते हैं कि अब आप इनकी एलईडी लाइट्स बनाइए और आप इसको अपने शोरूम के अंदर जलाना शुरू कीजिए, जैसे ही सनसेट के बाद से. आई मीन, सो जब ये पर्टिकुलर एलईडी लाइट जलना शुरू होती है, बाय डिफॉल्ट क्लाइंट का फुटफॉल वहां पर बढ़ना शुरू होता है. अब मे भी शायद ये आपको मैजिक लगता होगा या फिर आपको कुछ अलग तरह की बात लगती होगी, लेकिन इसमें आप देखिए, हम लोग कई बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, ये डांसिंग एरियाज में जाते हैं, क्लब्स वगैरह में, आपने देखा होगा वहां पर बहुत ही हाई मटेरियल, हाई एलईडी लाइट्स को चलती हैं, वहां पर बहुत पावरफुल सिंबल्स काम करते हैं. तो वो पर्टिकुलर चीजें जो एनर्जी वाली होती है ना, आपको वहां पर खींचती हैं. आपका खींचने का मतलब कि एक बार कस्टमर शॉप तक आ जाए, शोरूम तक आ जाए, उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं उसको कुछ इस तरह से फिक्स किए जाते हैं कि वो उसकी आईज को प्लीजिंग होना चाहिए, वो अट्रैक्ट करना चाहिए मैग्नेट की तरह, और धीरे धीरे फिर वहां पर प्रोडक्ट की जो सेल होती है वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है. सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन इट कि जैसे बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, बट दीज थिंग्स आर मैजिकल एंड पावरफुल टू. लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है कि हम सारे मैक्सिमम लोग ना इन सारी चीजों पे विश्वास इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वी आर वेरी साइंटिफिक पीपल. हमने पढ़ाई की, हमने एमबीए किया, हमने पीएचडी किया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर किया. हमें इन सारी चीजों से ऐसा लगता है कि ये तो सारे फालतू के काम है और लोगों को बेवकूफ बनाने के काम है, बट ऐसा नहीं है. एक बहुत बड़ी कहावत मानी जाती है कि बिलियनर्स डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बट बिलियनर्स डू. यानी अगर आप देखेंगे कि इंडिया के टॉप मोस्ट के जो 10 रिचेस्ट इंडियंस हैं, अगर मैं उनकी भी बात करूंगा तो उनके लोगो डिजाइन में आप देखिए कहीं ना कहीं आपको न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट देखने को मिलेगा. उनके प्रोडक्ट प्राइसेस में देखिए, लाइक आई वाज जस्ट शेयरिंग अबाउट जियो वाज द कंपनी जिन्होंने पहली बार अपने प्राइसिंग को कुछ डिफरेंट मॉडल दिया. लाइक जैसे मैंने बताया था कि राउंड फिगर में प्राइसेस को रखा जाता है. जियो ने जब अपने आप पैकेजेस इंक्लूड किए थे, प्लान्स इंक्लूड किए थे पर मंथ में, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था 303 से कि पर मंथ का अगर आपने मोबाइल रिचार्ज करना है तो 303, फिर 306, 309, 399 यानी 369 के टोटल में आपको देखने को मिलेगा. इनफैक्ट कुछ टाइम तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगर 22% प्रॉफिट अगर कमाया है, लाइक इंक्रीज किया है, ग्रोथ पैटर्न शो किया है, तो दे वॉन्ट अनाउंस 22%, दे विल अनाउंस 21.9%, क्योंकि अल्टीमेटली उसका भी टोटल नंबर 3 पर आता है. राइट. सो कॉर्पोरेट में अगर आप देखेंगे, लाइक बिग बॉस है, बिग बॉस के पीछे न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है. और बिग बॉस के आज के डेट में अगर कलेक्शन देखेंगे, सो 2015 के अप्रोक्स मैंने देखा था कि बिग बॉस जहां पर 2 महीने का एपिसोड चलते थे, दैट इंक्रीज टू 4 मंथ्स, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन इतना ज्यादा था. हॉटस्टार का जो चैनल आता है जहां पर आईपीएल के मैक्सिमम मैचेस वहां पर आते हैं, यू विल सी कि हॉटस्टार के पीछे भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट है. एट अ टाइम 2020 का जब मैच चलता है, ऑलमोस्ट देयर आर लाइक अप्रोक्स 16 to 20 मिलियन व्यूज एट अ टाइम. तो बहुत बड़ा गेम होता है. मार्वल एवेंजर्स की आपने मूवी देखी है, दुनिया भर में सुपर हिट रही है. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि 2018-19 में देयर वाज अ लास्ट मूवी ऑफ मार्वल एवेंजर्स द एंड गेम. मार्वल एवेंजर्स द एंड गेम वो लास्ट मूवी थी वहां पर. और यू वोंट बिलीव उस टाइम पर मैं मुंबई में था, एंड आप
सोचिए कि फर्स्ट डे का फर्स्ट शो कितने बजे से शुरू हुआ होगा। इट वॉज फ्रॉम मॉर्निंग 5, सुबह 5 बजे से उसका शो शुरू हुआ था। एंड उसके 3 वेरिएशन है प्राइस में। पहला जो टिकट प्राइस था वो था 800, देन 1500, देन 2000 रुपीज। सो मार्वल एवेंजर्स में भी पूरा निम्नोलॉजी का इम्पैक्ट था। इनफैक्ट अवतार जो भी है उसमें भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो फॉरेन कंट्रीज में इतना ज्यादा दबदबा है इनका। एंड बहुत सारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को भी आपका सरप्राइज होगा कि साउथ इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा चलन है। साउथ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ना तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को बहुत गहराइयों से इसको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि पर्टिकुलरली पिछले कुछ सालों से हम सब देख रहे हैं, 2-3 सालों से, कि बहुत सारे बॉयकॉट्स हो रहे हैं मूवीज को लेकर। अब अगर आप बॉलीवुड की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोग अब पूजा को, हवन को, हमारे एथिक्स को, इस पर्टिकुलर शास्त्र को मूवीज में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन साउथ इंडिया मूवी में बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए साउथ इंडिया के मूवीज में भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को बहुत गहराइयों से यूज किया जाता है। सो ओवरऑल अगर एक मैं टोटल आपको बिजनेस न्यूमरोलॉजी के बारे में बोलूं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने अदानी, अंबानी, टाटा, बिरलास को कैटर करना है। आपके बाजू में कोई एक छोटा सा शॉपकीपर है, उसके लिए भी बिजनेस न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। राइट। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आप लोगो डिजाइन करते हैं और नंबर्स, कंपनी का नाम डिजाइन करते हैं, और जैसे हम बच्चों का नाम डिजाइन करते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ वो भी हमारे लिए कंपनी भी जब हम बना रहे हैं तो वो भी एक हमारे लिए बच्चे की तरह ही है। अगर हम उसको वो प्यार और वो क्या कहते हैं उस प्यार के साथ नहीं पालेंगे, उसके साथ में वो सारी चीजें नहीं करेंगे जो हम अपने बच्चों के साथ करेंगे, तो वो बढ़ेगा कैसे? मतलब वो ग्रोथ और वो हम कहाँ से एक्सपेक्टेशन रखेंगे? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ आई टॉक अबाउट यू, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन व्हेन यू मीट पीपल और फेस लार्ज ऑडियंसेस? एंड व्हाट डू यू थिंक द प्लस और माइनस ऑफ द सेम इज? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन अर्लियर। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन आल्सो। स्कूल कॉलेजेस में भी मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हुआ करते थे। एंड आई टेल यू वन रियल टाइम हैपनिंग जो मेरे साथ में हुआ था। सो व्हेन आई टुक एडमिशन इन वन ऑफ द एमबीए कॉलेजेस इन पूना, और डे 1 से हमारे प्रोफेसर ने इतनी मोटी नॉवेल यानी 400 to 500 पेजेस की एक नॉवेल सारे स्टूडेंट्स को वहां पर सर्कुलेट किया था। एंड दे टोल्ड अस कि लाइक विद इन अ वीक यू नीड टू रीड द कंप्लीट नॉवेल, और इसकी जो ब्रीफिंग है आपको 5 मिनट्स के अंदर स्टेज पर आकर करना है। यानी 1 वीक का टाइम था, 500 की पेजेस की नॉवेल को कंप्लीट करना था, और 5 मिनट का उसका प्रेजेंटेशन हमने ऑडियंस के सामने देना था। मैं एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक हमने कभी इस तरह से ना स्टेज फियर हमेशा से रहा, हमने कभी पब्लिक ऑडियंस के सामने इस तरह से कभी बात नहीं किया है। सो मैं अपने 5-6 फ्रेंड के साथ में स्टाफ रूम में गया और लिटरली वी बैक्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर कि प्लीज हमसे ये सारा नहीं लिया जाए। लाइक आपको अगर सुनना है, कुछ ब्रीफिंग करनी है तो आप क्लास में ले लीजिए, ऑडिटोरियम में हमें सबके सामने हम बोल नहीं पाएंगे, वहां पर ये सारी चीजें नहीं हो पाएगा। आपको पता है वो प्रोफेसर थे, एमबीए में एडमिशन लिया था तो ये सारा तो करना ही था। उन्होंने कोई भी बात हमारी नहीं सुनी वहां पर। एंड द फाइनल डे व्हेन इट केम, लिटरली माय बॉडी वाज शिवरिंग। मैं मतलब जब स्टेज पर गया था ना तो मैं हकला रहा था, मैं शिवर कर रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक 5 मिनट्स के अंदर मैं कैसे पब्लिक के सामने उनके क्वेश्चंस को भी फेस करूंगा। वो मेरा लाइफ का पहला ऐसा समय था कि जहां पर मुझे पता पड़ा कि ऑडियंस के सामने मेरी कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं चलना है। सो एक फियर फैक्टर सा था, क्योंकि हमेशा से आई वाज अ शाय गाय, मैंने कभी बहुत सारे लोगों से बात नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन आई वाज देयर। लेकिन हुआ क्या कि लाइक 5 years बैक जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट किए न्यूमरोलॉजी के, यू वोंट बिलीव कि मेरा जो सेशन था रात को 9 बजे से शुरू होने वाला था, और 15 मिनट पहले 8:45 को मैंने टाइप करना शुरू किया कि आज का सेशन हम कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। बिकॉज अगेन यहाँ पर फियर था कि इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे और इतने सारे लोगों के सामने बोलूंगा कैसे। तो 8:45 को जैसे मैंने मैसेज टाइप करना शुरू किया, माय वाइफ आस्क्ड मी कि क्या कर रहे हो आप, पोस्टपोन क्यों कर रहे हो सेशन? मैंने उसको बताया कि पता नहीं मुझे डर सा लग रहा है। बोले डर किस बात का? मैंने कहा इतने लोगों के सामने कभी फेस नहीं किया। बोले ये डर है, कुछ और डर है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप न्यूमरोलॉजी में लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे इसलिए डर लग रहा है? मैंने कहा उतनी तो मेरी एक्सपर्टाइज है कि मुझे उस चीज का बिल्कुल डर नहीं है। देन माय वाइफ सेड कि आज जिस सेशन को आप पोस्टपोन कर रहे हो, कल भी यही फियर रहेगा, कल की जगह क्या करोगे, परसों पोस्टपोन करोगे, ऐसे तो हमेशा से चलता रहेगा, आज पूछ जाओ। एंड देन शी पूछ्ड मी कि नहीं आज सेशन लेना ही लेना है, क्लास में करना ही है। सो इट वाज लाइक 9 बजे जैसे सेशन शुरू हुआ, शुरू के 15-20 मिनट मैं थोड़ा सा ना लाइक बोलने में झिझक रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 9:15 के बाद से टिल नाउ अब मेरा ऐसा हो गया कि मैं चुप ही नहीं होता हूं व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी। सो अगर आप देखेंगे कि जब भी मैं ऑडियंस से बात करता हूँ, जब भी अपने लोगों से न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, तो अब मैं खुलकर बिंदास बात कर लेता हूँ, कोई ऐसी इशू नहीं आती है। सो लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है, मेरी लाइफ में भी आ गया। सो नाउ आई एम एक्सट्रोवर्ट, और ये मेरे प्रोफेशन का एक हिस्सा भी है, क्योंकि अगर मैं शाय बन करके अगर अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ जाऊंगा, एक जगह पर बैठकर बंद कर दूंगा कि नहीं एट अ टाइम सिर्फ एक ही लोगों से बात करना है, तो मैं खुलकर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाऊंगा। सो मेरा प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहां पर मास लोगों के साथ बात करना, उनकी तकलीफों को सुनना, उनकी बातों को सुनना। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये लाइफ की जो जर्नी है, अब इसने मुझे, मेरे पैशन ने, मेरे प्रोफेशन ने मुझे कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट बना दिया है। वंडरफुल। और ऐसा होता भी है, जिस चीज को लेके आप काफी
पैशनेट हो अपने लाइफ में ना, वो चीज आपको एक्सट्रोवर्ट बना देती है बाय डिफॉल्ट। और ये बात भी फैक्ट है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी अगर मुझे किसी से मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता था ना, मैं बार्गेन भी नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब्जी के दाम इतने हैं तो मुझे बार्गेन क्यों करना, ठीक है ना भैया ने 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं बात भी नहीं कर पाता था खुल के। लेकिन फिर टाटा स्काई का ना एक वो ऐड याद आता है कि पूछने में क्या जाता है। करेक्ट। उनका एक बहुत प्यारा ऐड आता है कि पूछने में क्या जाता है। तो पूछने में यानी आपकी एक कॉन्फिडेंस को वो एक हिम्मत दे रहा है कि लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि एक कदम आगे तो रखो, पूछने में क्या जाता है। सो कई बार ना इस तरह के कुछ एड्स आते हैं तो वो भी आपको मोटिवेट करते हैं, और इसलिए टाटा स्काई का वो पर्टिकुलर एड ना मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, अदर देन माय वाइफ। करेक्ट। एंड ये छोटी छोटी चीजें हैं बट पावरफुल है। तो अगर हम बात करें इन योर लाइफ, हु वर द पीपल सपोर्टेड यू द मोस्ट? वन नेम यू ऑलरेडी मेंशन्ड, बट स्टिल हु ऑल सपोर्टेड यू द मोस्ट? ऐसा टोल यू कि माय फैमिली मेंबर्स फुली सपोर्टेड मी। और ऐसा था कि जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आया तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही बोला कि हमने इतना पैसा लगाया हुआ है लाइक इन एमबीए, और अब तुम इस प्रोफेशन में आ गए हो। तो शुरू में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सी ऑल ऑफ अ सडन 50 इयर्स के एक्सपीरियंस को आप अचानक से किसी और फील्ड में लेकर जाओ तो सब वहां पर पूछते हैं। इवन माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वर शॉक कि राजीव तुम किस पर्टिकुलर फील्ड में आ गए हो। सो शुरू में इस तरह की तकलीफें आई थी, लेकिन माय फैमिली मेंबर्स, माय वाइफ, माय सन, माय पेरेंट्स, एवरीबॉडी सपोर्टेड मी। और इससे भी ज्यादा सपोर्ट अगर मैं देखूं तो मुझे क्लाइंट्स को जब मैं कंसल्टेशन देता था, उनका जो फीडबैक आता था उसने मुझे एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट दिया। बिकॉज यू नो कि लाइक व्हेन यू आर राइट ऑन योर पाथ, और जब आपकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं, आपका जो कंसल्टेशन होता है, आपकी जो रेमेडीज होती हैं किसी को लाइफ में अगर मेजर असर लेकर आती हैं, और उनका जब आपको फीडबैक मिलता है, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जहां पर आपको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। सो ये सारे के सारे लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे मेरी लाइफ के। दैट्स रियली वंडरफुल, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपोर्ट तो लाइफ में चाहिए होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे सिर्फ इतना ही सपोर्ट हो कि एक पीछे से पुश मिले, जैसे आपको आपकी वाइफ थे उस दिन पुश किया ये करना है तो करना है, करो। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली वंडरफुल एंड सपोर्ट अस इन अ वे दैट वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। और कभी कभी सपोर्ट नेगेटिव भी होता है। वी हैव पीपल अराउंड अस, फ्रेंड्स अराउंड अस हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, बट दैट गिव्स यू अ इनर मोटिवेशन आल्सो। ठीक है, मुझे इसको प्रूव करना है कि नहीं भाई, तू जो तू बोल रहा है वो बकवास है। आई हैव मोर देन what I know is more power than what you think. I can do anything. So that is also equally important. So related to this thing, I would like to share one more incident with you and with the audience also. कि I was an average guy in my school and जो college life होती है तो I was an average guy. Like मैं outstanding नहीं था कि मेरे 99 या 98% आते हो या फिर मैंने बहुत बड़ा एग्जाम को क्रैक किया हो। एवरेज का मतलब ये भी होता है कि आप कंसिडर कर सकते हो कि यू आर बैक बेंचर लाइक। सो बैक बेंचर्स के केस में कई बार ना स्कूल कॉलेज के टाइम पर ये होता था कि आज की डेट में जब यही सारे फ्रेंड्स मुझे देखते हैं ओवर द शोज या टीवी पर देखते हैं या कई बार मेरे लाइव वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनको भी विश्वास नहीं होता है कि कल का बंदा जो एक एवरेज स्टूडेंट था आज न्यूमरोलॉजी की फील्ड में इतने सारे लोगों को मास कम्युनिकेशन कर रहा है, मास कंसल्टेशन दे रहा है। सो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग रहा था। लेकिन इन सबके पीछे अगेन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पापा का एक वो पर्टिकुलर शब्द बहुत याद आता है, एक पर्टिकुलर वो सेंटेंस बहुत ज्यादा आता है कि पापा हमेशा से बोलते थे कि बेटा जिस भी फील्ड में एंटर करोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मास्टरी हासिल कर देना। बिकॉज आइज के डॉक्टर बहुत होते हैं, तो आंखों के डॉक्टर में कैटरेक्ट होता है या आइज में से कई बार पानी आता है या फिर आइज में विजन कम होता है, बहुत तरह की बीमारियां होती है। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक स्पेशलाइजेशन को अगर आप पकड़ लेते हो तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाते हो। सो ये बात हमेशा मुझे उनकी याद आती है और हमेशा आज भी वो इस सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं कि किसी भी फील्ड में जाते हो मास्टरी हासिल करोगे ना तो यू विल बी यूनिक, यू विल बी स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। तो उनके ये शब्द हमेशा से आज तक मेरे भी कान में गूंजते हैं और आज भी वो यही बोलते हैं कि आगे भी इस तरह का सफर अपना जारी रखना, कि सारे लोगों से बिल्कुल हटकर रखना, क्योंकि ये पर्टिकुलर मास्टरी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएगी और ये मास्टरी एक रिकॉग्निशन लेकर आएगी। करेक्ट, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज कि आप बहुत सारी चीजें भी करो तो एक चीज कोई ऐसी कोर होनी चाहिए जिसमें आपका फोटे हो। सो इफ आई टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इन लाइफ, व्हाट इज योर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन? हाउ यू गेट दैट? सी अगर मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात करूं तो मेरा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है मेरे क्लाइंट का फीडबैक रहता है फ्रेंड। क्योंकि जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं न्यूमरोलॉजी ऑनलाइन सेशंस लेता हूं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, जब मुझे फीडबैक देते हैं कि राजीव सर योर कोर्स इज एक्सीलेंट, हमें बहुत सारी नई चीजें समझ में आई, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली, एंड मैं ट्राई करता हूं कि वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, सिखाने के लिए जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनाए। इसके अलावा मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हमेशा से जिनको मैंने सर्विसेज दिए, उनको जब रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके जो फीडबैक मिलते हैं ना, वो एक इंस्पिरेशन होते हैं कि नहीं आई एम ऑन द राइट पाथ और इस तरह में और लोगों की भी हेल्प करना चाहिए और लोगों को भी इस तरह की सर्विसेज देनी चाहिए। तो क्लाइंट का फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा से मेरे लिए एक मोटिवेशन का रूप रहा है।
करेक्ट। और क्लाइंट जब खुश होते हैं तो डेफिनेटली हमारी खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और जहां पर आप एक स्पिरिचुअल गाइड या कोच की तरह काम करते हो, तो ये पर्टिकुलर जर्नी ऐसी होती है ना कि लोगों का ट्रस्ट और फेथ इजीली नहीं आता है। इट टेक्स ओवर इयर्स टू बाउंड रिलेशनशिप, मतलब एक तरह से ट्रस्ट को क्रिएट करना वहां पर, तो ये थोड़ी सी लंबी जर्नी होती है। बट अगेन हाँ, जब आप किसी मकसद को मीट कर जाते हो, आप कामयाब हो जाते हो, और ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं उनके फीडबैक से देखने को मिलती है। राइट। सो सही बात बोली आपने, और इम्पोर्टेंट भी है। तो if I talk about your take on success, so what do you feel about success, or what your thoughts are about success? सी सक्सेस मेरे लिए वही है कि सी क्लाइंट को फायदा पहुंचाना मेरे लिए सक्सेस है। मैं अगर किसी काम को करता हूं वो मुझे खुशी देता है, लेकिन मेरी उस काम से किसी क्लाइंट को खुशी मिलती है, वो मेरे लिए एक सक्सेस का काम करती है। सो मैं भी किसी भी तरह से किसी भी एफर्ट्स डालता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, उससे अगर क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो मेरे लिए सक्सेस होती है। सक्सेस मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं बहुत बड़ा मिलियनर बन जाऊं, बहुत बड़ा बिलियनर बन जाऊं, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया मेरे अंडर में आ जाए, या पर्टिकुलर इंडिया का रीजन मेरे अंडर में आ जाए। नो, जहां पर भी क्लाइंट को रिजल्ट्स मिले, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी है, उनकी लाइफ में यूथ आना है, जहां पर वो जिस बात से परेशान थे उनकी लाइफ में मैं छोटा सा भी अगर चेंज लेकर आ सकता हूं, तो वो मेरे लिए सक्सेस का मायना रखती है। ग्रेट। मतलब जब आप दूसरों के लिए काम करते हो ना, और उनको सक्सेस मिलती है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, और वो जो इनका खुशी होती है वो आपके लिए और ज्यादा सपोर्टिव और ज्यादा एनर्जेटिक भी होती है। और जो भी आप कर रहे हो आपके उस कॉज को लेके या आपके लाइफ में, एवरीथिंग विच यू नीड और विच यू रिक्वायर ऑल्सो फुलफिल्स दैट। दैट इज रियली वंडरफुल वन। सो वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। एनी मैसेज, एडवाइस, सजेशन you have for our audience? सो जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर व्यू कर रही है, वॉच कर रही है पर्टिकुलर वीडियोस, आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो मैंने एक बार बीच में शेयर किया था कि लाइफ में जब भी आपने आगे बढ़ना है, आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। आप किसी का ना सपोर्ट लेके आगे मत चलना। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम धंधे, किसी भी सर्विसेज को शुरू करने के लिए हम पार्टनर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन वो पार्टनर भी आपके साथ तभी काम करेगा जब आपके अंदर कोई एक्सपर्टाइज है, आपके अंदर कोई भी हिडन पैशन है ना, आप उस हिडन पैशन को अपने सामने लेकर आइए, वो आपको बहुत आगे बढ़ाकर चलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति फार्मा इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, बिकॉज कोरोना इंडस्ट्री में मेडिकल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो किसी ने लाइक ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स का काम शुरू किया, किसी ने ऑक्सीमीटर्स का काम किया, किसी ने लाइक मास्क और सैनिटाइजर्स के काम शुरू किए, बहुत सारा होता है। लेकिन अगेन क्या हुआ कि वो 2-3 साल का काम था और फिर वापस से सब कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। सो किसी को देखकर ना हमने यहाँ पर कॉम्पीट नहीं करना है। आपके अंदर का जो भी हिडन टैलेंट है ना, आप उसको सामने लेकर आइए, आपको ये मल्टीफोल्ड्स वहां पर बढ़ा देगा। दूसरा, हमने किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, और आपकी एक्सपर्टाइज कहीं ना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर देगी। सेकंड थिंग, जब आप किसी भी जर्नी में जाते हो तो वहां पर बहुत सारे लोग ना आपको टोकना शुरू कर देते हैं। बाटा के ओनर को किसी ने ये बोला होता, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे सोशल सर्कल में ना कई लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करते हैं कि ये कौन सा काम कर रहा है जूते चप्पलों वाला, ये तो मोची वाला काम हो गया। लेकिन बाटा वाले ने अगर ये सुना होता तो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं की होती। तो सिमिलर फॉर्म में अगर अमूल ने ये सोचा होता कि लोग बोलेंगे कि यार ये तो दूध बेच रहा है, तो वो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बनी होती। तो शब्दों के उस पर मत जाइए, आपके अंदर का जो भी टैलेंट है उसमें आगे बढ़िए, आपको डेफिनेटली 100% सक्सेस जरूर देखने को मिलेगी। करेक्ट। और देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो छोटी छोटे बेसिक चीजों पे काम करते हैं, एंड दे क्रिएटेड अ ह्यूज लेगेसी इन देयर इंडस्ट्री, इन देयर सेगमेंट। तो वो तभी हो सकता है कि जब आप अपनी शिद्दत के साथ काम करो और बाकी लोग क्या कह रहे हैं उसके ऊपर फोकस ना करो। और जब भी आप अपनी जर्नी में बढ़ते हो ना, इस तरह के हिंड्रेंसेस ना आती रहती हैं, और ये आपके लिए एक तरह से ना लाइक पॉजिटिव भी होता है कि आप इसको कैसे क्रॉस करके आगे मूव फॉरवर्ड करते हो। करेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल थिंग यू हैव शेयर्ड अबाउट दिस थिंग, कि जब आप जर्नी में हो तो ऑब्वियसली आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अप्रिशिएट भी करेंगे, कुछ नेगेटिवली आपको पीछे पुल करने की कोशिश करेंगे। बट उस टाइम पे आप जितना फोर्सफुली आगे बढ़ते हो ना, वो आपकी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है, और ज्यादा पावरफुल बनाता है, और ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, और आप ज्यादा फोर्स के साथ आगे बढ़ते हो, और वो जो सक्सेस आप चाहते हो लाइफ में वो अचीव कर सकते हो बहुत इजीली। इजी तो नहीं कह सकते, एफर्ट तो लगेगा ही डेफिनेटली, एफर्ट्स तो लगेगा। मेड यू मोर कंफर्टेबल एंड ईज आउट कि आप जो चीज कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़ते हो। So very wonderful thing, important though. So I must say you have shared so many amazing insights about numerology, business numerology, how it work around business, how it can help business to have a right path, in a way that designing a logo or name for the company could be one wonderful thing, which we are practicing very less numbers in India, but probably it will help businesses to have an edge. So thank you so very much, Rajiv ji. Really wonderful having you here, and I really enjoyed the conversation we had about business numerology, and I have some curiosity about this thing. So I would also ask you
few details about this. In next round, we would have certain questions prepared beforehand. So looking forward to it. Sure, definitely. Surely. And thank you so much, जितेंद्र जी, for inviting me on this show. और मुझे लगता है कि ऑडियंस जो भी इस वीडियोस को देखेंगी उनको भी एक मैसेज जरूर मिलेगा. अगर साइंस की कोई भी ब्रांच हो, सी अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो अ साइंस. जहां पर साइंस आ जाता है ना, वहां पर हमेशा से किसी न किसी तरह से रिसर्च का काम जरूर होता है. True. सो कई लोगों का जैसे डिसबिलीफ होता है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती. ये काम बहुत अच्छी तरह से करती है. अगर एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती ना, तो आप देखोगे कि हम शादियां जो करते हैं उसमें जो परंपराएं निभाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है. तो आप ये मानकर चलो कि जहां पर भी साइंस, हम कोई तांत्रिक विद्याएं नहीं करते हैं, हम कोई शॉर्टकट के मेथड्स को यूज नहीं करते हैं. जैसे कई बार आपने एड्स देखे होंगे कि बंगाली बाबा या फिर आपने वुडू, तांत्रिक मैजिक, जो 24 घंटे के अंदर कमिटमेंट करते हैं कि हम आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आते हैं. सो अकल्ट साइंस में साइंस के ऐड हो जाने से ना, इसमें बहुत डीपली स्टडी होती है और ये हजारों सालों की स्टडीज हैं. सो सबसे पहले कर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कर्म तो हमें करना है. ऐसा नहीं कि आप बेड पर बैठे हो, घर पर बैठे हो तो आपके पास सारी लेविश लाइफ आती जाएगी. कर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू फॉलो. वो हमें करना ही करना है. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ बट किस्मत साथ नहीं देती है. सो कहीं ना कहीं जब नंबर्स और प्लैनेट्स का योगदान होता है ना, तो वो चीजों की बाधाएं भी थोड़ी सी धीरे धीरे दूर हो जाती है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलरली एक साइंस है जिसमें हजारों सालों से रिसर्च चली है और इसका भी आप पूरी तरह से यूज ले सकते हैं. इसका भी आप पूरी तरह से गाइडेंस ले सकते हो. और कहीं ना कहीं जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होगा तो आपको भी इसका धीरे धीरे पेट यहाँ पर बनता नजर आएगा. सो थैंक यू जितेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो. और इसी तरह से और भी आगे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. और आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा. Thank you so much. और I will also share your social media link with the video so that people can be in touch with you, take your help and guidance. And Surely, sir. guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, subscribe. Have a good time. Thank you and bye-bye.